Yeah, hello students and the viewers. Today our topic is the uses of the parts of speech. Okay, in parts, as you know, the parts of speech commonly they are of eight types, eight kinds. Okay, and sub kinds are also there. Five kinds of nouns, 10 kinds of pronouns, eight adjectives. In this way, we have approximately 27 parts. Okay, now question comes: how can we use these parts? Okay, and is it there कि a particular part, for example, a noun, is it fixed? A verb, is it fixed? Can we change it into another form? Today's topic is like that. Okay, so you see here a particular word, an adjective word. That adjective word can be converted into an adverb. That adverb can be converted into a noun word. Okay, so many words are there. Even the verb word can be converted into adjective, adverb, nouns. So this word cycling technique is very, very important. We need to understand this. Okay, if you don't understand, if we cannot use them, then your expressions or you may face the problem. How can I make sentences? Okay, so you need to have a large number of vocabs. So in a limited vocabs, multiple use, that is more useful. Means any say particular word, if we can use in a different ways, by changing a little, by using a prefix or suffixes. So here it is suffix. देखो, see the word is here polite. Polite is what? What is the Hindi meaning of polite? You know, polite, namra. नम्रता नम्रता नहीं नम्र namrata is your politeness. Okay, so minor differences are there, but the sense or the sentence, these words are used in a different way. Means polite is an adjective word. We use this polite just before a noun. That is the only place. For example, see the sentence is here: Neha is a polite girl. Okay, Neha is a polite girl. We did not use it before Neha. Neha is also noun, girl is also noun. But here we used polite just before girl. Girl is common noun. तो नेहा एक पोलाइट नम्र लड़की है. ओके, तो नम्र इज नम्रता नहीं, नम्र हियर, बिकॉज नम्र लड़की है. तो गर्ल इज योर noun, common noun. Just before the common noun we use polite. Okay, how can we use what is politely? Politely, she, देखो इसी नेहा के बारे में पहले हमने बता दिया. नेहा कैसे लड़की है? नेहा इज ए पोलाइट गर्ल. वो व्यवहार कैसे करती है, बातें कैसे करती है? नम्रता से. मीन्स शी बिहेव्स कैसे? पोलाइटली. ये इंपॉर्टेंट है कि अगर शी बिहेव्स पोलाइट लिखोगे तो गलत हो जाएगा. ओके, हाउ डज शी बिहेव? तो बिहेव क्या है? वर्ब है. शी बिहेव्स. हाउ? अगर इसके सामने क्वेश्चन पूछा जाए हाउ, यहां पे क्वेश्चन पूछो मन मन में, शी बिहेव्स, व्यवहार करती है. कैसे व्यवहार करती है? पोलाइटली, नम्रता से. अंडरस्टूड? कैसे बिहेव करती है वो? नम्रता से. लड़की कैसे है? नम्र है. ओके, बिहेव कैसे करती है? LOI जुड़ जाएगा. दैट इज कॉल्ड सफ. LOI इज द सफिक्स. शी बिहेव्स पोलाइटली. नाउ ये जो पोलाइटली इज योर एडवर्ब, इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब. देखो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऑल द
the usefulness of all these verbs noun, they have their specific places. ऐसे नहीं है कि disorderly कहीं पे भी बैठा दो, नहीं बैठेगा. We cannot do like that. उसके लिए स्पेसिफिक प्लेस है. जैसे एडजेक्टिव का प्लेस कहाँ होता है? जस्ट बिफोर द कॉमन नाउन. ओके, कॉमन नाउन यहाँ पे गर्ल है, उसके सामने हमने पोलाइट लगा दिया. पोलाइटली नहीं लगेगा. नेहा इज ए पोलाइटली गर्ल. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. पोलाइट गर्ल. शी बिहेव्स हाउ? पोलाइटली, नम्रता से वो बातें करती है. ओके, एंड पोलाइटनेस क्या है? पोलाइटनेस नाउन है. विच नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे गुणवाचक कहते हैं. नॉट नॉन विजिबल नाउन. रेस्ट ऑफ ऑल द नाउन्स आर विजिबल. जैसे हमारे पास टोटल 5 नाउन्स आर देयर, इजंट इट? प्रॉपर नाउन, सभी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, सब कुछ प्रॉपर नाउन सारे विजिबल है, हम देख सकते हैं. कॉमन नाउन वो भी हम देख सकते हैं. कलेक्टिव नाउन वो भी हम देख सकते हैं. कलेक्शन ऑफ सो मेनी थिंग्स, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ, जैसे आई टॉट यू ऑल दिस. ओके, ए बंच ऑफ कीज, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए शोल ऑफ फिश. तो ये सारे हम देख सकते हैं. ओके, देन मैटेरियल नाउन वो भी हम देख सकते हैं. देन नेचर मेड प्रोडक्ट्स, ये विजिबल है, टचेबल है. बट ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नॉन विजिबल है. वी कैंट सी बट वी कैन फील कर सकते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. जैसे हमारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का फैक्टर है. ओके, मोबाइल में जितने हार्डवेयर है, पार्ट है, वो तो हम देख सकते हैं, है ना. बस सॉफ्टवेयर देख सकते हो क्या? नहीं ना. तो वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी पार्ट सब दिख जाता है. इवन इनर पार्ट्स भी डॉक्टर लोग, सर्जन निकाल के सब कुछ देख लेते हैं कि क्या है, बिकॉज दिस इज विजिबल. लेकिन जो हमारी मन है, जो विचार है, तो हम नहीं देख सकते ना. दैट इज नॉन विजिबल. तो इसीलिए इससे नॉन विजिबल में भी एक क्वालिटी है. उसे दैट थिंग इज, दैट इज योर नाउन. लाइक योर पोलाइट, पोलाइटली एंड पोलाइटनेस. पोलाइटनेस, हाँ, नम्रता एक अच्छी गुण है. पोलाइटनेस इज ए गुड वर्च्यू. पोलाइटनेस है क्या? एक अच्छा गुण है. तो पोलाइटनेस से हम सेंटेंस बना सकते हैं. वी कैन यूज दिस पोलाइटनेस आइदर स्टार्टिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. इसके लिए 2 ही जगह है. हर एक नाउन के लिए 2 जगह है. SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो स्टार्टिंग में हम पोलाइटनेस इज ए गुड वर्च्यू, पोलाइटनेस से हम सेंटेंस स्टार्ट कर दिया. पोलाइटनेस इज ए गुड वर्च्यू, राइट, एक अच्छी गुण है. तो पोलाइटनेस से हम सेंटेंस बना दिया. आई लाइक पोलाइटनेस, ऑब्जेक्ट के प्लेस ले लिया. मैं पोलाइटनेस, आई सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? वर्ब है. व्हाट, क्वेश्चन पुट करो, व्हाट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. आई लाइक पोलाइटनेस. सो दैट्स व्हाई दीज आर सो सिस्टमैटिक कि हम डिसऑर्डरली किसी को भी कहीं पे नहीं बैठा सकते. हमें देखना पड़ेगा, प्लेसमेंट देना है. जैसे वो नाउन में बदल गया तो उसके लिए 2 ही जगह है, स्टार्टिंग या तो एंडिंग. सब्जेक्ट के प्लेस, नहीं तो ऑब्जेक्ट का प्लेस. जैसे वो वर्ब बन गया, मान लो वर्ब वर्ड है, हमेशा SVO मिडिल में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. पर यहाँ पे वर्ब का बात नहीं आ रहा है. यहाँ पे हमारी एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड नाउन्स. ठीक है. तो नेक्स्ट वर्ड देखो, यहाँ पे ब्रेव है. ब्रेव, साहस, साहसी. ब्रेव, साहसी. ओके, और इसको हम यूज कैसे करेंगे? He is a brave boy. He is a brave boy. He is a brave boy. देखो, बॉय नाउन है, नाउन के सामने लग गया ब्रेव. वो एक बहादुर लड़का है, साहसी लड़का है, बहादुर लड़का है. ओके, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव सोल्जर्स. ब्रेव सोल्जर्स, सोल्जर्स के सामने ब्रेव लग गया तो ये बहादुर है. तो ब्रेव सोल्जर्स के ठीक सामने लगेगा. जैसे इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ब्रेवली हो गया,
तो वो एडवर्ब बन गया, तो यहां पर नहीं यूज कर पाएंगे हम। वी कैंट यूज जस्ट बिफोर ए नाउन। ओके, ही इज ए ब्रेव बॉय, बॉय के सामने हमने ब्रेव, ही इज ए ब्रेवली बॉय बोलोगे, नहीं होगा। ही इज ए ब्रेवली बॉय नहीं है। नाउ क्वेश्चन कम्स, कहां पे यूज करेंगे ब्रेवली को? एल वाई सफिक्स, सारे एडजेक्टिव के सामने हम एल वाई लगा दो तो ये एडवर्ब बन जाता है। ओके, स्वीट स्वीटली, पोलाइट पोलाइटली, ओबीडियंट ओबीडियंटली, सिंसियर सिंसियरली। तो ये जो एल वाई सफिक्सेस है ये सारे क्या है? एडवर्ब है। और इसका यूज कहां पे होगा? वर्ब के, फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद में ही, ये इसका प्लेस है। ब्रेवली, इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, साहसिकता से, बहादुरी से लड़ते हैं। ओके, ही इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, तो ब्रेवली इज एन एडवर्ब, इसे सिंपल एडवर्ब कहते हैं। इनिशियली ऑल्सो वी कैन यूज, नाउन से पहले भी इस एडवर्ब को हम यूज कर सकते हैं, रिमेंबर। ओके, एल वाई वाला सफिक्स है, इसका प्लेस केवल वर्ब के बाद नहीं होता है, वी कैन यूज देम इनिशियली ऑल्सो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर एक सेंटेंस में दो एडवर्ब्स है तो दो एडवर्ब, एक को हमें इनिशियली रखना ही पड़ता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, देखो अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है, इसको हमने कहां यूज किया? स्टार्टिंग में। अनफॉर्चुनेटली कमा लगता है एक, आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या, ये भी एक एडवर्ब है। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये दो एडवर्ब्स है, तो एक एडवर्ब हम इनिशियली यूज कर सकते हैं। ओके, तो नाउ हियर इट इज, जैसे ब्रेवली, ब्रेवली कमा लगाओ, इंडियन सोल्जर्स फाइट, अगर रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो। ओके, इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। ओके, सो ब्रेवली जो होता है, जैसे ही सफिक्स एल वाई लगा दिया तो वो एडवर्ब बन गया, एंड वी यूज दिस एडवर्ब either स्टार्टिंग, नहीं तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। स्टार्टिंग कहां पे? सब्जेक्ट से भी पहले, ब्रेवली से हमने स्टार्ट कर दिया। ब्रेवली इंडियन सोल्जर्स, सब्जेक्ट है इंडियन सोल्जर्स, फाइट, फाइट मेन वर्ब है। ओके, सो दीज आर नाउ क्वेश्चन, ब्रेवली, ब्रेव, ब्रेवली, देन ब्रेवनेस, नाउन, नेस लगा दिया, नाउन, पोलाइट, पोलाइटनेस। ओके, ये जो नेस, ज्यादातर बहुत सारे नेस, हर जगह में नेस लगेगा ऐसे कोई बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर वर्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ब्रेव के सामने इसका जो नेस लगाते हैं तो वो ब्रेवनेस, वो दैट इज योर नाउन। ब्रेवनेस इज ए गुड क्वालिटी, ब्रेवनेस इज ए गुड क्वालिटी, ब्रेवनेस इज ए गुड वर्च्यू, गुण है। आई लाइक ब्रेवनेस, तो देखो इसका भी दो जगह है, स्टार्टिंग नहीं तो एंडिंग। ओके, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के एस बी ओ याद रखोगे, एस बी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो वी आर यूजिंग ब्रेवनेस, वी कैन यूज इनिशियली ऑल्सो, ब्रेवनेस आई लाइक मोस्ट, और आई लाइक ब्रेवनेस, ब्रेवनेस इज ए गुड वर्च्यू। ओके, गॉट इट? तो ब्रेवनेस, ब्रेव, bravely, braveness, we also call it bravery, bravery also your noun word, braveness और bravery, साहसिकता एक अच्छी गुण है। now come to obedient। ओके, हम एप्लीकेशन लिखते हो कहीं किसी बॉस के पास, या स्टूडेंट्स जब टीचर के पास एप्लीकेशन लिखते हैं तो योर्स ओबीडियंटली, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, तो ये जो ओबीडियंट, ओबीडियंटली, ओबीडियंसी है, ये सारे माइनर चेंजेस आर देयर इन देयर फॉर्म्स। ठीक है, जैसे हम चेंज कर देते हैं तो उसका असली जो उसका सेंस, मीनिंग है वो निकल के आता है, एंड वी यूज देम, देयर प्लेसमेंट्स आर चेंज्ड। ओके, ब्रेव, जैसे ओबीडियंट के जगह ओबीडियंटली हम नहीं लगा सकते, और ओबीडियंटली के जगह हम ओबीडियंसी भी नहीं लगा सकते। तो है क्या, देखो पहले मीनिंग समझ जाओ। ओबीडियंट, व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ ओबीडियंट? आज्ञाकारी,
आज्ञाकारी है ना हिंदी में, हाँ, योर ओबीडियंट स्टूडेंट। तो ओबीडियंट के बाद क्या लगा? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के सामने हमने एडजेक्टिव लगाते हैं। ओके, ही इज ए गुड बॉय, गुड के बॉय के सामने गुड लग गया। ही इज ए ओबीडियंट स्टूडेंट, स्टूडेंट के सामने ओबीडियंट लग गया। तो योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट ये नहीं होगा। योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट, योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, योर ओबीडियंट स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट लगाते हो तो एल वाई नहीं लगेगा, और ओबीडियंसी स्टूडेंट ये भी नहीं होगा, केवल ओबीडियंट ही लगेगा। योर ओबीडियंट स्टूडेंट। ओके, आज्ञाकारी स्टूडेंट। ओबीडियंटली, एल वाई सफिक्स, रिमेंबर एल वाई सफिक्स ज्यादातर हमें सिंपल एडवर्ब के फॉर्म में मिलता है। तो हम क्या लिखते हैं? योर्स ओबीडियंटली। ओके, ओबीडियंटली इज एन एडवर्ब। ओके, आज्ञा, जैसे ही फॉलोज द टीचर ओबीडियंटली। कोई भी स्टूडेंट के बारे में बोलते हो, ही द स्टूडेंट obeys, he obeys the teacher obediently, he follows the teacher obediently, huh? He listens to his parents obediently। पेरेंट्स के बाद ध्यान obediently फॉलो करते हैं, जो भी बोलते हैं। ओके, follows the parents obediently, आज्ञाकारी। तो ओबीडियंटली का सेंस क्या होता है हिंदी में? व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी? ओबीडियंटली ही फॉलोज। ओके, सो पेरेंट्स का फॉलो करते हैं। या क्या कहे हिंदी, इन हिंदी व्हाट इज द एक्चुअल हिंदी सेंस? आज्ञाकारिता से व्हाट इज द हिंदी मीनिंग? पेरेंट्स का पालन करेगा, पालन, पेरेंट्स के आज्ञाकारी का पालन करता है तो वो तो बात है, अलग बात है। लेकिन ओबीडियंसी, आई एम आस्किंग फॉर ओबीडियंसी। आज्ञाधीन हो, आज्ञाधीन होने से तो वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। आज्ञाकारी हो, वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। आज्ञाकारी स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है। तो व्हाट इज ओबीडियंसी? ओबीडियंसी ये नाउन है। ओबीडियंसी इज ए noun and obedience is a good quality, isn't it? Obedience is a good quality. I like obedience, आज्ञाकारिता। देखा जाए तो हिंदी मीनिंग में यही सेंस आता है, लेकिन हम तो यूज करते नहीं है। ओके, आज्ञाकारिता मुझे पसंद है, आज्ञाकारिता। तो आई लाइक ओबीडियंसी। ओके, ओबीडियंसी इज ए गुड वर्च्यू। ओबीडियंसी एक अच्छी गुण है, वर्च्यू है। सो ये है हमारी वर्ड साइक्लिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज देयर यू श्योर। कब बातों बातों में हम इसको बहुत यूज करते हैं इन कॉमन स्पोकन इंग्लिश। ओके, विल यू कम टू द क्लास टुमारो? या श्योर, श्योरली, श्योर, श्योर। तो श्योर, श्योरली, श्योरिटी, इसमें अंतर क्या है? श्योर इज एन एडजेक्टिव वर्ड। आर यू श्योर? या, आई एम श्योर। ओके, तो ये जो श्योर इज योर एडजेक्टिव वर्ड। श्योर के बाद एक नाउन, कॉमनली हम यूज करते नहीं है, बट देयर इज ए नाउन आफ्टर श्योर। श्योर व्हाट? मेरा आना श्योर है। ओके, ये काम हो जाना श्योर है, निश्चित है, निश्चित। डेफिनाइट, तो ये डेफिनाइट, सर्टेन क्या है? सारे एडजेक्टिव है। ओके, तो जैसे एल वाई लग गया, श्योरली, निश्चित, कंफर्मेशन, श्योरली आई विल डू इट, आई विल डू इट श्योरली। ओके, आई विल कम टू द क्लास श्योरली। तो आई विल डू इट, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, श्योरली आई विल डू इट, श्योरली।
तो दैट इज सेम थिंग, व्हेन श्योर से श्योरली में पहुंच जाते हो तो दैट इज यूज्ड आइदर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और इनिशियली, बिकॉज दीज आर द टू प्लेसेस एज आई टोल्ड यू। ओके, जैसे ही एडवर्ब बन गया तो एडवर्ब का सिंपल एडवर्ब है, इसके दो ही जगह है, तो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, नहीं तो at the end of the sentences. These are the two places we can use this. Okay, surely. So we can comes next. Next is your surety. What is that? No. Noun. Okay, sure, surely, surety. I want the surety. मुझे चाहिए, क्या चाहिए? श्योरिटी चाहिए, इस काम के लिए मुझे श्योरिटी चाहिए, तो श्योरिटी इज ए नाउन। Surety is necessary for this work. Without surety, I will not do this work. Without sure नहीं, without surely नहीं, without surety, मुझे तो surety चाहिए. I want the surety. I subject है, want main verb है. What do you want? Surety. तो surety is your object. Okay, so whenever we convert this, इस parts of speech का हिस्सा है सारे, देख रहे हो, ठीक है? 8 parts are there commonly. 8 पार्ट्स से बहुत सारे पार्ट्स है, एक को हम डिफरेंट वेज में माइनर चेंजेस आर देयर, ओके, बाय यूजिंग प्रीफिक्स सफिक्सेस वी चेंज देयर फॉर्म एंड वी यूज देम इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। कोई भी एक वर्ड जैसे एक जगह में इसका यूज अलग है, सबका यूज आपने देखा होगा, सबका यूजेस अलग अलग है, तो इन दिस वे यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट मोर एंड मोर। ओके, दिस इज ए पार्ट ऑफ वर्ड साइकिलिंग टेक्निक। हमको वर्ड को साइकिल करना है, यानी वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक नाउन वर्ड को, एक वर्ब वर्ड को एडवर्ब में बदल जाना। एडवर्ब को सपोज फॉर एग्जांपल सी वी एडमायर, एडमायर, यू नो एडमायर, व्हाट इज एडमायर? एडमायर, ADMIRE, एडमायर क्या है? तारीफ करना, है ना, तारीफ करना। वी एडमायर, क्या एडमायर करते हो आप? बहुत सारी चीजें हम तारीफ करते हैं। वी एडमायर आवर कल्चर, द होल वर्ल्ड एडमायर्स आवर कल्चर, हमारे कल्चर का तारीफ करते हैं, इजंट इट? इंडियन कल्चर इज वेरी गुड, तो गुड कल्चर है। तो वी एडमायर, हम तारीफ करते हैं, क्या तारीफ करते हैं? हमारी कल्चर को तारीफ करते हैं। वी एडमायर आवर कल्चर। तो एडमायर क्या है? यहाँ पे वर्ब है, वी की सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो वर्ब भी लगता है, इजंट इट? वी एडमायर आवर कल्चर। एडमायर वर्ब को हम कैसे, देखो ये केवल हमने एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन्स में बदल दिया, वर्ब को भी अब लाओ। एडमायर इज ए वर्ब, तो इसके साथ जैसे हम एबल लगा दिया, एडमायरेबल। ओके, इंडियन कल्चर इज एडमायरेबल, ये एडमायरेबल कल्चर है, ऐसा वैसा कल्चर नहीं है, एडमायरेबल, तारीफ के लायक कल्चर है, होल वर्ल्ड एडमायर करते हैं, isn't it? तो एडमायरेबल कल्चर, एडमायर कल्चर नहीं होता है, एडमायरेबल, एबल, कंपेयर, कंपेरेबल, ओके, सस्टेनेबल। तो ये जो एबल वाला एक, गो थ्रू द योर गूगल, यू कैन फाइंड आउट द एबल सफिक्सेस एडजेक्टिव्स। हमें कलेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, आप यू कैन गेन मोर एंड मोर। ओके, तो एडमायरेबल, एबल, ABLE, एबल सफिक्स है ये। ओके, एडमायर, एडमायरेबल। ओके, तो एडमायर, एडमायरेबल, देन एडमायरेबली, देन एडमिरेशन, एडमायरेबली एडवर्ब हो गया। ओके, आवर एंसेस्टर्स बिल्ट इट एडमायरेबली, हमारी जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, हमारी कल्चर को किसने बनाए? हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं ना। आवर एंसेस्टर्स मेड इट, कैसे बनाए कल्चर को? एडमायरेबली, प्रशंसनीय तरीके से बनाया है, एडमायरेबली। ओके, LY सफिक्स जैसे आ गया, एडमायरेबल, एडमायरेबली, तो ली सफिक्स में क्या हुआ? एडवर्ब बन गया। हाउ डिड दे मेक इट? दे मेड इट एडमायरेबली,
ओके, तो बनाने के ऊपर बात है, बनाना इज योर वर्ब, मेड, दे मेड इट, कैसे, एडमायरेबली। ओके, नाउ इसको भी चेंज कर दो, नाउन में बदल दो, शन लग जाएगा, TION, एडमिरेशन। एडमिरेशन ऑफ आवर कल्चर इज फाउंड एवरीवेयर। एडमिरेशन ऑफ आवर कल्चर, हमारी कल्चर का जो एडमिरेशन है, तारीफ हर जगह में होता है, isn't it? Admiration of Indian culture is found everywhere. तो admiration is your noun. तो एक ही वर्ड को हमने देखा कि वर्ब को हम एडवर्ब में बदल सकते हैं, उसको नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी नाउन को फिर एडजेक्टिव में बदल रहे हैं। तो माइनर चेंजेस आर देयर, वी शुड नो द टेक्निक। इससे क्या होगा, आपको कम वोकैब्स में आपको महसूस नहीं होगा कि मेरे पास वोकैब्स कम है। ओके, मल्टीपर्पज यूज, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल को हम कितने बाकी काम का, देखो टॉर्च का काम हम वो कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, कैमरा का काम हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ओके, फोन केवल एक ही पर्पज नहीं है, सिर्फ फोन रिसीव करो और फोन कॉल करो, नहीं, सो मेनी पर्पसेज आर देयर। सिमिलरली सिंगल वर्ड, इफ यू नो फ्यू वर्ड्स, मल्टीप्लाई विथ सो मेनी, अनलिमिटेड हो जाता है आपके पास वोकैब्स, once you know the word cycling technique. Understood my point? Yes. आप सोचोगे नहीं मैं तो मेरे पास वर्ड में हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, नो, यू डोंट थिंक लाइक दैट, यू शुड नो द वर्ड साइकिलिंग टेक्निक। इस पर जाओ ज्यादा से ज्यादा। अब देखोगे आप, हम एक मोबाइल फोन लेके जेब में दुनिया भर के काम कर रहे हैं एक मोबाइल से, क्यों, मल्टीपर्पज यूज है। सिमिलरली विथ लिमिटेड वर्ड्स, यूज देम इन डिफरेंट वेज, देखोगे आपके पास वर्ड का कमी नहीं है, यू विल नॉट बी फेसिंग एनी ट्रबल, बिकॉज यू नो जैसे प्रॉब्लम आ गया तो उसको वर्ड, उसी वर्ड को वर्ब को नाउन में बदलना, नाउन को एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। यू नीड टू नो मोर, बहुत दिस थिंग्स, इट इज नॉट इन ए ऑल ऑफ ए सडन एट ए टाइम, ये नहीं होता है, धीरे 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 धीरे, यू शुड ट्राई टू डू इट। ओके, तो जैसे कोई भी वर्ड के सामने LOI एप्लीकेबल है या नहीं, ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे देखना होता है, ठीक है। इन दिस वे इफ यू ट्राई देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, यस।